This is our last chapter of advanced costing, chapter 4, contract costing. Now, just as we have done process costing, I hope you remember how was process costing. I hope it was easy for you. Once you understand the concept and the formulas and whatever is there, the format, so it becomes very easy. So process costing was basically related to a manufacturer who manufactures different type of products at different stages, and a product has to pass through different stages. So while passing through different stages, a product will incur different costs at different stages. Therefore, a manufacturer has to calculate each, like all the cost of each of those, what to say, stages, so as to determine the selling price and profit. So that was process costing, because a product when passes through many different stages to get converted from raw material to finished goods. So different costs are incurred at different stages. Okay, so that is why a manufacturer has to calculate different costs related to one product passes through different stages. Okay, so that was particularly known as process costing. Now, what is contract costing? Yeah, Shivani, आवाज स्लो आ रहा है. Is it now okay? Yes, ma'am. अभी बरोबर है. Okay. Contract costing. So what do you mean by contract costing? Do you understand the word contract? And can you get some meaning out of it? Yes. Hmm? To So mutual what? understanding to the contract paper like contract anything Hmm. documentation. So contract means an agreement between two parties and a mutual agreement between two parties, right? So contract means a mutual agreement between two parties. So here, what do you mean by contract costing? See, it is, first of all, it is used by contractors. Those who take contracts, enter into contracts, he becomes contractor. The person who takes the contract becomes contractor, and the person who accepts the contract becomes contractee. So there are two parties. Okay, when they come together and when they both enter into a mutual agreement between each other, there is a mutual agreement, so that becomes a contract. And in contract, what they do is, one party will take up a contract of, say, like building a bridge, for making a flyover, or you can say making a flat, converting a raw flat to to a ready-made, like a living room, maybe a drawing room, maybe a storeroom. So it has to be converted into a proper flat. Okay, a house, you can say. Or he can enter into a contract of making a complex, a building. Okay, of building an elevator, of making an elevator. Okay, so these are the contracts that a contractor may enter into. Suppose now I'm making a mall. I'm the owner of the mall. Okay, so I want to make elevators inside the mall. So what will I do? I will give you a contract of making, like, suppose, say, 4 to 5 elevators. Okay, and 4 to 5 lifts. So you have got a contract, and we have entered into a contract with each other. So one party will receive money and other party will pay. When other party will pay, when I will pay to you, when you will complete the contract as per my instructions. So whatever I want, you need to construct that way. Okay. So in contract costing, the work is carried on at construction sites. So there is some site, there is some place where you need to go and build something, and it takes time.
Like time it takes more than one accounting year for its completion. So it may go for more than 1 year. Like if you see a metro has been started to build, right? They had started to build the metro, but if you see it, it does not take like 1 year. In 1 year they will not be able to make complete metro trains. It will take maybe more than 5 years, maybe more than 3 years. So some contracts take like more than 1 year. Okay, so those contracts are known as long-term contracts. So it is a method of costing. Now you need to see, no, that every year, this particular contract is costing me how much, because it is not a matter of 1 year. Now you need to go for many years for a particular contract, and you are not entering into one contract. Have you seen any business entering into one contract? Suppose a businessman who makes building, okay, constructs building, constructs complexes, converts into house, proper house, okay. So have you seen they will take only one complex in a year, only one building to build in a year? No, they have so many contracts in a particular year. So say like in 1920. So maybe I have taken 10 to 12 projects altogether. But it is not necessary that all the projects will start at one time and all the projects will complete at one time, at same time, or rather I can say. That is not compulsory, right? So what will happen here in this method of costing, in order to calculate the total cost, both indirect and direct, to a contract, in order to fix the contract price for it. Therefore costing is done, no. Now you do not know like which contract started when year. If you do not know this, how will you be able to calculate the cost right from the beginning till the end of the contract? So you need to know what was the starting date of the contract, and when it is going to be get, like when it is getting over, when the work will get over, right? You need to know this, and with the help of this you will be able to see how much cost was incurred in a particular contract. Suppose there was one contract which took 2 years. So how much was the cost incurred in first year and how much was the cost incurred in second year? And accordingly, you will charge your quotation. Accordingly, you will fix your quotation price. What is quotation price? What is quotation price? जो Can कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा, हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है अमाउंट, कितने अमाउंट का हम बना के देंगे. वेरी गुड. मतलब देखो, जब हम गुड्स को बेचते हैं ना, व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स एंड कमोडिटीज, सो वी चार्ज सेलिंग प्राइस. व्हाट वी चार्ज इज सेलिंग प्राइस. बट नाउ इफ यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, big contracts of huge amounts, of heavy amounts, like 50 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट है, 40 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं कोटेशन प्राइस. ठीक है. तो सबसे पहली बात तो, जब हम कोटेशन प्राइस डिसाइड करते हैं ना, तो उसके पहले तो मुझे ये पता रहना चाहिए कि जब मैं कोटेशन आपको बता रही हूँ, जैसे 50 लाख रुपए, ठीक है, तो अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि 50 लाख रुपए में मेरा प्रॉफिट कितना है. ठीक है. तो मैंने ना कैलकुलेट कर लिया पहले, क्या, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर कर रही हूँ और मैं आपको पूरी बिल्डिंग बना के देने वाली हूँ, तो पूरी बिल्डिंग बनाने का खर्चा ही अगर 1 करोड़ होने वाला है, तो मैं आपको कोटेशन प्राइस 50 लाख रुपए कैसे दे सकती हूँ? मतलब मैं आपसे 50 लाख रुपए लूंगी और बाकी 50 लाख रुपए अपनी जेब से निकालूंगी. ऐसे करता है कोई कंपनी? आप बताइए. हम्म. Is this the way to charge contract price? Or you can see quotation price? No. So what is the first step? First step is to determine, with the help of analytics, experts, technicians. So you need to understand what should be the contract cost.
सो कॉस्टिंग हैज टू बी कैलकुलेटेड फर्स्ट कि ये मेरा, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो मेरा कितना खर्चा होगा। अच्छा, अगर मेरा इतना खर्चा होगा तो मेरा प्रॉफिट कितना मुझे चाहिए, वो प्रॉफिट एड ऑन करके आप कोटेशन प्राइस डालते हो ना। ठीक है। सो इसीलिए वो बोल रहा है टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्यों? इन ऑर्डर टू फिक्स द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है। सो आउटपुट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज मेनली फिक्स्ड, इरेक्टेड एंड फैब्रिकेटेड एट वन प्लेस। पूरा इसको हम एक ही जगह पर लेकर आते हैं, सारा कुछ जो भी है, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, आप जो कुछ बोलेंगे ना वो हम एक प्लेस पर उसको लेकर आते हैं। ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी मूव्ड, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना जो हम बनाते हैं, ये ना फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड, ही कैन नॉट बी मूव्ड। इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं ये, जैसे बिल्डिंग, लैंड, लैंड पे बनी हुई, लैंड एप्रूटेंट बिल्डिंग कहते हैं इसी। आपने ना इसको, मैंने आपको टैक्स में भी बताया था, ये लैंड एप्रूटेंट बिल्डिंग, लैंड से जुड़ी हुई बिल्डिंग, वो कहीं मूव हो सकती है। हाँ, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेके जा सकते हैं आप बिल्डिंग को? नहीं लेके जा सकते ना। सो इट इज बिल्ड देयर, सो यू नीड टू स्टे देयर। So if you want to invest, you can invest, but it cannot be moved from one place to another. Hospitals, school, dams, flyovers, bridges, metro stations, metro trains, railway stations. So these are the contracts, who, like, somebody takes it to build it, somebody is like giving the contracts. So suppose government is giving a contract to a company that you need to build flyover and bridges and roads and parks for me, like for public. Okay, so suppose government is selling the contract, I mean purchasing the contract, and company is selling the contract. So company is here to enter into a contract, and that particular company is responsible to make and build that particular hospital, school, dam, road, flyover, bridge, building, complex, whatever is there. Now that company is responsible to build. Now that company will make an estimation of what the cost will be incurred in a particular contract that I will enter into, and that particular company will give a quotation price to the government. So government will decide whether to enter into a contract or not with that particular company. So maybe if government feels that that company is charging me too much, so that government will go to another companies and will approach another companies, and accordingly he will see, like government will see which company to approach and which company to choose. So the company who will charge lesser amount from the government, so the tender will pass to that particular company. Okay, tender means contract. Okay, so this is the process of contract. We need to calculate contract cost so as to determine the contract price. So what do you mean by contract price? Quotation price. And usually मतलब बोला जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, विच एक्सटेंड्स more often, more often it extends to more than 1 year. So I cannot say मतलब कि मतलब 1 year के से ज़्यादा ही लगता है, कंपल्सरी मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, बट येस यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादातर 1 year से ज़्यादा टाइम लगता है. सो यू कैन से कॉन्ट्रैक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं मोस्टली. हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है ना. तो अभी दो पार्टीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी, लिखा हुआ है आप पढ़ोगे तो. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है ना, ये इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है. जैसे जैसे काम फिनिश होता जाएगा वैसे वैसे आप पे करते जाएंगे. जैसे एग्जांपल ले लो, मैं ना मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और आपने मुझे बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है. तो जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी, अब मुझे भी तो कैश चाहिए ना. अब मेरे पास भी इतनी सारी कैश कहाँ से आएगी? स्टार्टिंग में तो चलो मैंने इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है,
लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी 20% बन गई, तो मैंने 20 लाख खर्चा भी तो किया है 20% के पीछे। अब 20 लाख रुपए आप समझो कितना बड़ा अमाउंट है, तो मुझे भी तो कैश तो चाहिए ना। मेरे पास भी कोई पेड़ थोड़ी नहीं है जहाँ से पैसे उग रहे हैं और मैं निकालती जा रही हूँ, नहीं है, नहीं है मेरे पास ऐसा कोई पेड़, है ना, मनी प्लांट तो नहीं है मेरे पास। तो क्या होगा, तो 20% काम फिनिश हो गया, तो आप मुझे 20% है ना, अगर आपको सेटिस्फाई हो गया कि ये काम बिल्कुल बराबर हुआ है, तो आप मुझे क्या करोगे, पेमेंट दे दोगे 20% के, 100% नहीं दोगे, क्योंकि मैं धोखा दे के भाग गई तो नहीं। सो जितना काम फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, उतने वर्क डन हो गया एंड अप्रूव्ड हो गया, सब कुछ लिखा हुआ है। आप पढ़ो वो लाइन जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, जहाँ पे मेरा कर्सर है, वहां पे पढ़ो, आपको समझेगा, वर्क डन एंड अप्रूव्ड। अब उसके अकॉर्डिंगली आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, और उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट 20%, 20%, 20 भी हो सकती है, 40-60 भी हो सकती है। आई बात समझ में। पर यूजुअली लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, जैसे जैसे काम फिनिश होता जाता है ना, वैसे वैसे आप पेमेंट लेते जाते हो, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है ना। तो बिजनेस के पास भी इतना इतना बड़ा बड़ा अमाउंट कहाँ से आएगा, और ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है जो मैं लेके बैठी हूँ, ऐसे पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मेरी कंपनी चला रही है। तो हर एक जगह 20-20 लाख मेरा ब्लॉक होता जाएगा, तो मैं इतने करोड़ों कहाँ से लाऊंगी एक साथ। तो मुझे उतने पैसे आप मुझे देते भी जाओगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। ये ना पीडीएफ कॉपी बहुत रोटेट करने में डिफिकल्टी आती है। ओके, एनीवेज ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका। The main objective of contract costing is to ascertain, to calculate, to determine the cost of each contract. मतलब अब एक कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने लिया नहीं है, तो सिमिलरली जब मैंने बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, तो एक एक की कॉस्ट कितनी है। So actual cost may be compared with the estimated cost, which facilitates the estimation of cost of similar contracts to be undertaken in the future. तो मैंने देख लिया कि ऐसा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैंने एंटर किया, सपोज बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, सो हाउ मच विल आई हैव टू इनकर इन द फ्यूचर, तो वो उसकी जानकारी आप एस्टिमेशंस आप अभी लगा सकते हो ना। तो इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैलकुलेट करके रखते हो। और सिर्फ ये रीज़न नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये रीज़न से भी तो निकालना है कि आपको प्रॉफिट देखना है कितना कैलकुलेट हुआ फ्रॉम एंटरिंग इनटू पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप सोशल सर्विस थोड़ी ना कर रहे हो। आपने क्या करना है, आपने तो बिजनेस करना है। बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट अर्न होता है। सो अंटिल यू अर्न प्रॉफिट, आपको लगता ही नहीं है कि आपने बिजनेस किया। सो बिजनेस का अनदर नेम ही होता है प्रॉफिट। आया समझ में। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, ये देखो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब बड़ी बड़ी मशीन्स बनाने का। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ब्रिजेस, रोड, डैम्स, पार्क्स, फ्लाईओवर्स, शिप बिल्डर्स, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्म्स होते हैं जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, ठीक है। समझ में आया, आगे चलें। इट्स जस्ट अ डिफरेंशिएशन, you can say differentiation between job costing and contract costing। तो आपको पता होगा, अभी हमने किया है प्रोसेस कॉस्टिंग में जॉब कॉस्टिंग, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग 2 में किया ना जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग में लेस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उसमें लेस नंबर ऑफ साइज ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मोर। सो इसमें यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, ठीक है। वर्क इज कैरिड ऑन द विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये फैक्ट्री के अंदर काम होता है जॉब का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का फैक्ट्री के बाहर काम होता है। यहाँ पे काम खत्म जल्दी होता है, यहाँ पे लॉन्गर टाइम लगता है पूरा होने को। सो
यहाँ पे लमसम पेमेंट हो जाती है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट होती है, जैसे जैसे काम खत्म होता है वैसे वैसे पेमेंट होती है। ठीक है। जॉब कॉस्टिंग में काम का जो प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग जॉब्स इन्वॉल्व होते हैं ना, डिपार्टमेंट्स, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग अलग जॉब्स। ठीक है। यहाँ पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर किया तो उसका कॉस्ट निकालना सिंपल हो जाता है। प्रॉफिट्स आर एसेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द जॉब। जब तक जॉब खत्म नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट पता नहीं लगेगा। यहाँ पे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स का भी प्रॉफिट पता लग सकता है, एक एक साल का अलग अलग। वर्क इन प्रोग्रेस, नॉर्मली जॉब इज कंप्लीटेड विद इन अ ईयर। ठीक है। यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस इतना नहीं होता है, आधा अधूरा काम पेंडिंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन 2 years, मोर देन 3 years, मेरा बोलने का मतलब है स्ट्रेचेस अ ईयर। ठीक है, मतलब ये एक ईयर से भी ज़्यादा चला जाता है, तो इसमें वर्क इन प्रोग्रेस के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके। ओके, अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मुझे आपको क्लियर करनी है, बहुत इजी है, मतलब नाम पढ़ के, टाइटल पढ़ के किसी को भी खुद से ही समझ में आ जाता है, बट स्टिल बिकॉज अभी हमारे सिलेबस में है तो फिर ये पार्ट भी हम कवर कर लेते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब हम असाइनमेंट में एंटर करते हैं किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए और उसको ख़त्म करने का प्रॉमिस देते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट में एंटर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कंपनी और एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द कंस्ट्रक्शन वर्क, वो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। कॉन्ट्रैक्टी मतलब ही इज द पार्टी और पर्सन हु हैज असाइंड द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर। मतलब मैंने आपको अपना घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो मैं कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? जो म्यूचुअल एग्रीमेंट से दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कोटेशन प्राइस डिसाइड होता है ना, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कि जब खत्म होगा तो आप मुझे इतना इतना पेमेंट करोगे। वर्क सर्टिफाइड, ये क्या होता है? वर्क सर्टिफाइड क्या होता है? हम्म बताओ, वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? देखो, अब मैंने ना, आपने मुझे अपना घर बनाने का इंटीरियर डेकोरेशन करने का काम दिया था, ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। मैंने कह दिया 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, 3 महीने आप अपना बाद घर देख लेना। अब आप 3 महीने के बाद आए तो आपको ड्राइंग रूम तो बहुत अच्छा लगा, बढ़िया है, बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। आपका लिविंग रूम भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपने मुझे कह दिया, जो आपने हॉल बनाया ना वो बड़ा अजीब सा है, टीवी कहीं और होनी चाहिए थी, और सोफा कहीं और होना चाहिए था, और ये जो ये जो बेड बनाया हुआ है वो कहीं और, बैठक होती है जो वो कहीं और होनी चाहिए थी, मतलब अच्छे से वो स्ट्रक्चर आपको अच्छा नहीं लगा, तो फिर थोड़ी सी चेंजेस आपने कह दिया कि मुझे चेंजेस। ठीक है, तो जो आपको काम अच्छा लगा और हो जाने के बाद की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, हो जाने के बाद की बात कर रही हूँ। अगर इंजीनियर ने या सर्वेयर ने अपना काम खत्म कर दिया, आर्किटेक्चर ने जो काम कर रहा है उसने अपना काम खत्म कर दिया, द पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सेटिस्फाइड, सॉरी सर्टिफाइड। देखो, पहले तो मैंने अपना काम फिनिश किया, ऊपर से आपने कह दिया कि हाँ बिल्कुल बढ़िया है, ऐसा ही मुझे चाहिए था, उसे कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, जैसे लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, एक्सेट्रा, किचन, बाथरूम, ठीक है, आपने कह दिया बढ़िया है, वर्क सर्टिफाइड। अब जो मैंने काम खत्म किया, ध्यान से सुनो, काम ऐसा नहीं है पेंडिंग है, काम तो मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा वो, उसे कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। It is that portion of work which has been completed by the contractor, but it is not certified by the contractee, because he is somewhere feeling that
he is not satisfied with the work done, or you may say the quality of the work done, or you may say the structure of the work which is done. So you may dislike any of these, you can say work. तो उसे कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, समझ में आया वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड के बीच में डिफरेंस? ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ओके, अब देखो, समझो एग्जाम्पल ले लो, आपने ना 40% काम फिनिश किया अभी तक। हाँ, अभी तक आपका घर है ना पूरा बना ही नहीं है। क्या क्या बना हुआ है? आप ना बीच में 3 मंथ से पहले ही आपने सोचा चलो घर पे चक्कर लगा के आए, कितना काम फिनिश हुआ है और अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। होता है ना ऐसे, हम सीधा 3 महीने के बाद नहीं जाते। हम गए 1 महीने के बाद, 40% काम खत्म हो चुका था। क्या क्या बन चुका था? लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन। ठीक है, मतलब 3 BHK है पर एक रूम बन गया है, किचन बन गया है, लिविंग और ड्राइंग रूम भी बन गया है। ठीक है, तो मतलब 40% काम फिनिश हो गया। तो आपने सोचा चलो देखकर आते काम कैसा हुआ है। तो 40% में से 30% आपको अच्छा लगा, लेकिन ड्राइंग रूम अच्छा नहीं लगा, सो दैट कम्स इन 10%। तो उसको वापस बनाना पड़ेगा ना, इसके लिए अनसर्टिफाइड। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? Come on, quickly answer me so that I go further. यस मैम। Yes, okay. यस मैम। Retention money. रिटेंशन मनी क्या होता है? चलो पहले तुम लोग बताओ, मुझे देखने दो, तुम लोग कुछ सुन के समझ के आ रहा है? रिटेंशन टाइटल सुन के क्या समझ आ रहा है? रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रिटेंशन, रिटेंशन मतलब अपने पास रखना। रिटेंशन मनी का मतलब होता है, ये वो अमाउंट होता है जो कॉन्ट्रैक्टी आपको पे नहीं करता। और कब पे करेगा? कॉन्ट्रैक्टी मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, और जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया काम खत्म करके देगा, तो उसको अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा ना, पैसा मिलेगा ना काम खत्म करने का। तो वो कंपनी को पूरा का पूरा पैसा कभी कॉन्ट्रैक्टी देता है ऑन द स्पॉट? पूरा का पूरा लमसम अमाउंट मिल जाता है? नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। जैसे जैसे काम फिनिश किया मिलता जाएगा, पर फिनिश करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता ना। अब तो हमने देखा वर्क कंप्लीटेड इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वर्क कंप्लीटेड में 2 चीजें होती है, वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। तो जितना आपने सर्टिफाई किया, ध्यान से सुनो, जितना कॉन्ट्रैक्टी ने वर्क सर्टिफाई कर लिया उसका एक परसेंटेज डिसाइड होता है। सपोज 40% में से 30% आपने सर्टिफाई कर लिया, 40% काम हो चुका है, 30% आपको अच्छा लगा, 10% अच्छा नहीं लगा। तो जो 10% अच्छा नहीं लगा उसका भी आप पेमेंट करके आओगे सामने वाले को? करोगे पेमेंट? हाँ या ना बोलो। आप खुद से सोच के बताओ। नो। नहीं पे करोगे, वेरी गुड। नो। तो आप किसका अमाउंट पे करके आओगे? जितना वर्क डन एंड सर्टिफाइड है। प्लीज नोट, ये सम्स में काम आता है, इसीलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ। मैं भी कोई आपको एवं ही नहीं कुछ भी सिखा रही हूँ। what is necessary and what is important, I'm going through that point only, because I know what you will not understand, I mean I will have to explain that. ऊपर की पॉइंट्स आप थोड़ा बहुत रीड करके समझ भी लोगे, जो मैंने थोड़ा छोड़ भी दिया। ठीक है, सो इट इज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड सर्टिफाइड एंड हेल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी टिल द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप समझो, एग्जाम्पल ले लो, 40% में से 30% आपको बढ़िया लगा काम, तो आपने 30% पे कर लिया और बाकी का पे नहीं किया। क्यों? क्यों नहीं किया? क्योंकि कंपनी धोखा देके भाग जाए तो, चीटिंग करे तो, ठीक है, अमाउंट की गड़बड़ हेरा फेरी कर ले तो, नहीं ना। तो इससे अच्छा जितना जितना काम फिनिश हुआ है उतना उतना आप लेते जाओ। ये ठीक है ना? मतलब कंपनी को भी पैसा मिलता भी जाएगा, कैश की रोटेशन का भी तकलीफ नहीं होगा कंपनी को, और कॉन्ट्रैक्टी को भी दिक्कत नहीं होगी
कि मुझे लमसम पे करना है, इंस्टॉलमेंट्स में पे करता जाएगा वो। दोनों अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो रिटेंशन मनी का मतलब होता है वो अमाउंट जो मुझे अभी तक नहीं मिला, कंपनी को अभी तक नहीं मिला। रिटेंशन मतलब किसके पास रखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के पास, टिल द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ना, वो सारा अमाउंट मुझे मिल जाएगा। आया समझ में? यस मैम। अब है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली। 40% में से 30% वर्क सर्टिफाइड है, तो रिटेंशन मनी कितना होता है, कोई बताएगा क्या? देखो मुझे, मैंने जो समझाया उसमें से आपको कितना समझा। 40% में से 30% वर्क सर्टिफाइड है, तो रिटेंशन मनी का परसेंटेज क्या होता है? Come on, you need to answer me, you cannot be keeping quiet. 40, 30, 70, come on, give me answers. MCQs की तरह पूछ रही हूँ। 70% मैम। Very good, very good, very good Atifa, very nice. I hope Atifa was there, right? यस मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो रिटेंशन मनी का मतलब होता है जो आपने कॉन्ट्रैक्टी, जो कॉन्ट्रैक्टी ने अभी तक नहीं पे किया और टिल द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं पे करेगा। तो अभी तक कितना कंप्लीट और सर्टिफाइड हुआ? 30%। तो 30 तो पे हो गया ना, पे हो गया वो। रिटेंशन का मतलब होता है जो टिल द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो पे नहीं हुआ। इट इज हेल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी, वो अपने हाथ में रखता है वो पैसे। कब तक? जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ आया? यस मैम। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है? आप समझो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी 50 लाख है, सपोज। हाँ, एग्जाम्पल्स हैं ये। तो सपोज आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50 लाख है। 50 लाख में से 30%, देखो मेरी बात सुनो, वर्क सर्टिफाइड है ना, वर्क सर्टिफाइड, मैं बार बार बोल रही हूँ, वर्क डन सर्टिफाइड, वर्क डन अनसर्टिफाइड, वर्क डन सर्टिफाइड, मैं बार बार ऐसे बोल रही हूँ। तो ये किस पे कैलकुलेट होता है? क्योंकि मुझे अमाउंट तो वर्क सर्टिफाइड पे करना है ना। अब आपने ही तो बोला 70% वर्क अनसर्टिफाइड, सॉरी 70% रिटेंशन मनी है। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि 70% किसके ऊपर, 50% किसके ऊपर, 30% किसके ऊपर? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर। सो माय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए में से वर्क सर्टिफाइड हुआ था 30%, तो 50 लाख का 30% होता है 15 लाख रुपए। तो 15 लाख मैंने आपको पे कर दिया, बाकी 35 लाख रुपीज इज रिटेंशन मनी। अब क्लियर हुआ सबको, येस और नो, विद द हेल्प ऑफ दिस Yes. एग्जाम्पल? ओके okay. So now less than 1 minute is showing me. What we will do, we will take 5 to 7 minutes break and then we will join again. Only theoretical part we will cover today, and from tomorrow we will start with practical questions. Tomorrow means, of course, Sunday and Monday is holiday on account of Holi. So we will join on Tuesday for practical questions. बट नाउ 5 to 10 मिनट्स ब्रेक लेकर फिर से ज्वाइन करते हैं। एटलीस्ट हमारा थियोरिटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। इज दैट फाइन इनफ? Okay. Yes, ma'am. ओके, सो वी आर गोइंग टू